Hello students, today we are going to study variable motion. But before that, we have to see the definition of motion. If the body changes its position with respect to their position, it's called the motion. For example, this vehicle is moving from first point to any other point. It moves means what? It changes its position with respect to what? Surrounding. It's called the body. It is in a motion condition. Second is rest condition. मोशन के अपोजिट रहेगा रेस्ट कंडीशन. मीन्स व्हाट? इफ द बॉडी डज नॉट changes their position with respect to surrounding, then the body is said to be in a rest or at a rest. For example, this vehicle, it is at a stable condition. It does not having any movement. That's why it is in a rest condition. So for that variable acceleration, the two basic is required. First is motion condition and the second is rest condition. Next we have to see डिस्टेंस. क्या रहता है डिस्टेंस? जो भी हम डिस्टेंस बोलते हैं ना, डिस्टेंस कवर किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स व्हाट? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, yes, this animal wants to go from A to B, then they cover that irregular path. This actual path travel by that animal in a given interval of time is called the distance. जो भी actual path रहता है, जो भी travel होता है by the particle or by the any other body is called the distance, and it does not depend on the direction. That's why it is a scalar quantity and the unit is meter or centimeter. Next term we have to see displacement. Yes, the shortest path joining to the initial position and the final position of the body is called the displacement. For example, yes, this animal wants to go A to B. The actual path is covered by that blue line, but the shortest path which cover that animal from A to B, shortest जो path रहता है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. मीन्स कितना कम से कम टाइम जिस पाथ को लगता है वो हुआ शॉर्टेस्ट पाथ. इट हैविंग सम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट इज मीटर और सेंटीमीटर. Next we have to see speed. The rate of change of distance with respect to time is called the speed. Distance क्या रहता है? Actual path. Actual path. तो actual path को हम क्या बोलते हैं? Total path of that length. With respect to what? Time is called the speed. Then distance divided by time. It does not depend or irrespective of direction. That's why it is a scalar quantity and the SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. These girls with her bicycle moves. It is an example of that speed. Next term is velocity. Velocity means what? The rate of change of displacement with respect to time. What is meant by displacement? Displacement is nothing but the shortest path. Then the shortest path divided by or with respect to time is called the velocity. Then the displacement is denoted by r or x or s divided by time is called the velocity. It is respect to with that direction, that's why it is a vector quantity and the unit is meter per second in SI system and the CGS unit centimeter per second. Yes, this animal having the magnitude as well as direction, it having the some direction.
It's the example of that velocity. Next term is the types of velocity. First is instantaneous velocity. The velocity of particle at a particular instant is called the instantaneous velocity. Means what? The rate of change of position vector of particles with time at a certain instant of time is called the instantaneous velocity. अगर आपको किसी ने पूछा at that location what is the velocity of your vehicle at that position also and at that time also, then that velocity is called the instantaneous. Means at that time जो velocity रहती है वो हुआ instantaneous velocity. yes, तो वो टाइम जो रहता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है. इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, it continuously changes. Then it is a velocities, instantaneous velocities del r divided by del t. The next is uniform velocity. The velocity in which its magnitude as well as the direction what remains same is called the uniform velocity. For example, the vehicle is moving in a straight road. It does not giving any turn. At that time it having the same magnitude and same direction. Then this vehicle is with uniform velocity. Yes, motion along the straight line is example of that uniform velocity. Next type is non-uniform velocity. If either magnitude or direction of velocity changes or both changes, then the velocity is called non-uniform velocity. Means उसका magnitude change होगा और direction change होगा और दोनों भी change हो सकते हैं, उसको बोलेंगे हम non-uniform velocity. For example देखो, motion along the circumference of circle. Yes, along that circle particle is moving along that circumference of that circle. Then the particle it changes their magnitude or their direction also. Yes, at that position it changes their direction. Yes, it is an example of non-uniform velocity. Next term is acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called the acceleration, or the second differentiation of displacement with respect to time is called the acceleration. Velocity what? Velocity is nothing but the rate of change of displacement with respect to time. तो फिर से उसका जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. तो उसको हम सेकेंड इसमें क्या बोल सकते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. फॉर्मूला इज द एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, देन it is a rate of change of velocity with respect to time. Then what is meant by v? V is a rate of change of displacement with respect to time. तो इसका क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन हुआ और सेकेंड डिफरेंशिएशन हुआ, इसलिए इसका क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर. तो ध्यान में रखो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो रहता है इट इज ऑलवेज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, नॉट ऑफ द direction of velocity. It is same as the direction of change in velocity. Next we have to see unit. उसका unit क्या है, ऐसा unit is meter per second square and the CGS unit is centimeter per second square. Next हम देखेंगे acceleration के types. First is instantaneous acceleration. जैसे instantaneous velocity रहती है at a particular time, जो velocity रहती है उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एट दैट टाइम द टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट चेंजेस, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द लिमिट. देन एक्सेलरेशन इक्वल टू
rate of change of instantaneous velocity divided by time. Next we have to see next type, uniform velocity. If the body moves in such a way that its velocity changes in equal magnitude and in equal interval of time. अब एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी चेंजेस, तो वेलोसिटी चेंज होगा बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, चेंजेस भी हो रहा है बट वो किस में हो रहा है, इक्वली हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और variable acceleration. If the body moves in such a way that its velocity changes in unequal magnitude in equal interval of time is called the non-uniform acceleration. velocity change हो रही है but unequally हो रही है, उसको हम बोलेंगे, उस acceleration को बोलेंगे हम non-uniform acceleration. Yes, these are the two example. See here, this vehicle is moved in a straight line. It changes its velocity equally. It changes its velocity in equal magnitude in a given interval of time. But in second figure, this vehicle, it changes its velocity unequally. See here, it is straight line से velocity change हो रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है, बट एट दैट स्पीड ब्रेकर वेलोसिटी फिर से चेंज हो रही है, दैट्स वाई इट इज अनइक्वली चेंजेस ऑफ दैट वेलोसिटी, दैट्स वाई इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Yes, next we have to see the numerical on that variable acceleration. First numerical is the particle starting from rest moves in a straight line whose equation of motion is given by s equal to t cube minus 2t square plus 3. Find velocity and acceleration of particle after 5 seconds. अब आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल और वेरिएबल मोशन का एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल आया, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दिया रहता है, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो आपको उसका रिलेशन पता रहना चाहिए, किसका रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट का विथ व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ व्हाट, एक्सेलरेशन. अगर ये आपको रिलेशन पता है, उसका जो इक्वेशन है वो पता है, तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. क्या इक्वेशन है, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3. s पता है आपको, तो s से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब देखो, डिवाइड बाय dt है मीन्स क्या करना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. देन उसका डेरिवेटिव क्या आया, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो ये रहा, इट इज अ इक्वेशन ऑफ दैट वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का इक्वेशन पता है आपको, उससे आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग दैट एक्सेलरेशन. तो क्या आएगा, 6t माइनस 4, इट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन. तो आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड. तो t की जगह सिर्फ क्या करना है आपको, 5 सेकेंड पुट करना है. yes, at 5 सेकेंड पुट द इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर क्या है, वेलोसिटी का है, मीन्स उसको डिराइव किया है ये. तो 3t स्क्वायर माइनस 4t, उसमें आप t की वैल्यू पुट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड. एंड फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3. देन पुट t इक्वल टू 5 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 3. तो एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 26 m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, yes, the motion of particle along a straight line is given by x equal to t cube minus 3t square minus 9t plus
12. Determine time, position and acceleration of particle when its velocity becomes 0. अब ये जो न्यूमेरिकल है वो आया है बाटो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में जून 2019 के एग्ज़ाम में आया है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में, तो एक्स के फॉर्म में दिया है। एक्स इज नथिंग बट दी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है आपको, सेम जैसा हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वैसा ही है, बट यहाँ पे एक्स दिया है तो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो एस और एक्स इज नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट। क्या है इक्वेशन, टी क्यूब माइनस 3t² माइनस 9t प्लस 12। यस, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फॉर्मूला, tx डिवाइडेड बाय dt। तो आप इस इक्वेशन से अगर उसको डिराइव किया तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो क्या है वेलोसिटी की वैल्यू, 3t² माइनस 6t माइनस 9। फ्रॉम दैट वेलोसिटी we have to find out the acceleration. Acceleration is nothing but the rate of change of velocity divided by time. Then again differentiate that equation, then the value of acceleration is 6t minus 6. तो आपको क्या बोला है, क्या कंडीशन दिया है, determine the time, position and acceleration of the particle when its velocity becomes 0. तो velocity की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0, v इक्वल टू 0। वेलोसिटी का कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो वेलोसिटी v इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ये जो है ये इक्वेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 और t इक्वल टू 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू लेने की है t की। उसके बाद देन टेक द हायर वैल्यू ऑफ दैट t। इसलिए t की वैल्यू 3 आई, तो क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, हमने पहले टाइम फाइंड आउट किया, उसके बाद पोजीशन इज नथिंग बट दी दैट डिस्टेंस। तो d क्यूब माइनस 3t² माइनस 9t प्लस 12, इसमें आप t की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो डिस्टेंस आया 15 मीटर। नेक्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, 60 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, yes, the motion of particle along a straight line is given by a equal to t² minus 2t plus 2. After 1 second, distance traveled by particle and velocity is 14.75 meter and 6.33 meter per second. Find distance traveled after 2 seconds, velocity after 2 seconds and acceleration after 2 seconds. आपको मोशन का इक्वेशन किस में दिया है, एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको उसका रिलेशन पता है, इक्वल टू क्या है, dv डिवाइड बाय dt। फिर वेलोसिटी का इक्वेशन आया, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन क्या है, t² माइनस 2t प्लस 2, क्या है रिलेशन, a इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt। बट आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको dt को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो a dt, देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। अब देखो इनटू dt है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा ऑन दी बोथ द साइड। देन यस, तो क्या आया, v का, अब इसका इंटीग्रेशन लिया, dv का इंटीग्रेशन लिया तो वो v आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन a का इक्वेशन यहाँ पे पुट किया है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 2t² डिवाइड बाय 2 प्लस 2t प्लस c1। तो इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इक्वेशन में आएगा ही। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको t की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि न्यूमेरिकल में दी है। देखो आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल एंड वेलोसिटी इज 14.75 मीटर एंड 6.33 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड बोला है तो t पुट करना पड़ेगा 1 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी दी है, 6.33, तो वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी 6.33 मीटर पर सेकेंड। यस, तो इससे c1 की वैल्यू आ जाएंगी 5। नेक्स्ट अब देखो वेलोसिटी, अब c की वैल्यू मैंने इस वेलोसिटी के फॉर इक्वेशन में पुट की है,
तो t क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2t प्लस 5. इट इज इक्वेशन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का इक्वेशन मिला है, उससे आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या है रिलेशन? वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से इस वेलोसिटी का इक्वेशन से उसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो टी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2t प्लस 5, इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो उसका इंटीग्रेशन क्या आया? t रेज टू 4 डिवाइड बाई 12 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5t प्लस c2. अब आपको न्यूमेरिकल में कंडीशन दी है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड s इज 14.75. तो आप s की और t की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं और c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज नथिंग बट दी 9. देन द फाइनल इक्वेशन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज t स्क्वायर डिवाइड t रेज टू 4 डिवाइड बाय 12 माइनस t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 5t प्लस 9. देन आफ्टर 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएंगी? सिर्फ क्या करना है? उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, t इक्वल टू 2. देन दिस आर द 3 equations of that displacement, velocity and acceleration. Put that t equal to 2 seconds and we have to find out that value of displacement is 21.67, value of velocity means 7.66 and the value of acceleration is 2 meter per second square. Next numerical is the motion of particle along a straight line is given by a equal to t cube minus 3t square plus 5. The velocity of particle travel at t equal to 1 second is 6.25 meter per second and the displacement is 8.8 meter. Calculate velocity and displacement at t equal to 2. आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दी है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड और क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो इक्वेशन क्या है? t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है, उससे आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या रिलेशन है? a इक्वल टू डी वी डिवाइड बाय डी टी. तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा दोनों साइड से. यस, ये डी वी इधर है तो मैंने ये डी टी है इधर लेके गई मैं, तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. तो v का मतलब इक्वेशन ऑफ एट दैट एक्सेलरेशन हम पुट करेंगे. तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 5t प्लस c1. तो c1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यस, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है न्यूमेरिकल में? इट इज 6.25 मीटर पर सेकेंड. तो ये वैल्यू पुट की मैंने कौन से इक्वेशन में? दिस इक्वेशन. यस, t इक्वल टू 1. तो ये पुट की तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 2. तो फाइनल इक्वेशन क्या हुआ वेलोसिटी का? t रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 5t प्लस 2. देन बट what is the relation between the velocity and displacement? ds divided by dt. Then from that velocity we have to find out the equation of that displacement. The equation of that displacement is t raised to 5 divided by 20 minus 3t raised to 4 divided by 12 plus 5 square divided by 2 plus 2t plus c2. It is the equation of what? Displacement. But for finding that constant c2 we have to apply that condition. What is the condition which is given in the numerical? When t equal to 1 second the displacement is 8.8. Then put this value of that displacement and time in equation. Then the value of that c2 is 4.5. This is the equation of what? Displacement. Then after 2 second put the t equal to 2. यहाँ पे हम मतलब क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो इस इक्वेशन में हम t इक्वल टू 2 सेकेंड
पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वेलोसिटी का है, उसमें हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 24.1 मीटर एंड वेलोसिटी आ जाएंगी 8 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।